This message is for every area of your life. और ये संदेश आपके जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए है, Because so many believers also they misunderstand the message of faith. क्योंकि बहुत से विश्वासी विश्वास का जो संदेश है उसको गलत समझ बैठते हैं. And we will see where are we missing. और हम देखेंगे कि हम कहाँ पर चूक रहे हैं. Many times I have seen believers, if anybody is having a headache, they will say, "Oh, I don't have a headache. I don't have it." कई बार मैंने देखा है विश्वासियों को जब सर दर्द हो रहा हो तो कहते हैं अरे मुझे सर दर्द नहीं हो रहा, मुझे सर दर्द Or नहीं if they हो are sick, they'll say, "No, I'm not sick. रहा." I'm not sick." या अगर बीमार हो तो कहते हैं मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ. Has that happened? हुआ है? I used to do that. मैं भी ऐसा करता था. I was ignoring what was happening to me, thinking that is faith. जो मुझे हो रहा था उसको मैं नजरअंदाज कर रहा था, ये सोचते हुए कि ऐसा करना विश्वास है. And we all do that. और हम सब ऐसा करते हैं. We think, no. If I'll acknowledge what is happening to me, that is not faith. तो हमें लगता है अगर मैं वो मान लूंगा जो मेरे साथ चल रहा है तो वो विश्वास नहीं है. But then the Lord has to teach me that that is not how it works. फिर परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि ऐसे काम नहीं करता. Ignoring a problem will not bring the solution. एक समस्या को नजरअंदाज करना उसका समाधान नहीं लाएगा. Just saying I'm not sick will not make you healed. केवल ये कहना कि मैं बीमार नहीं हूं इससे कोई चंगा नहीं होता. Amen. So let's go through the word and then we'll learn how, where are we missing and what should we do. तो आओ हम वचन से देखते हैं और देखेंगे कि कहां पर गलती करते हैं और क्या करना चाहिए. Okay, open your Bibles to Genesis chapter 12. We'll read from verse 1 to 3. उत्पत्ति 12 उसका 1 से 3 को हम देखेंगे. Come on, I want you all to stand up for reading of the scripture and then we'll pray and then we'll go into the word. मैं चाहता हूं आप सब उठ खड़े हो जाएं वचन के पढ़ने के लिए, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और वचन में आगे जाएंगे. Come on. So Genesis chapter 12, I'll read verses 1 to 3. उत्पत्ति 12 उसके 1 से 3 को मैं पढ़ूंगा. Now the Lord had said to Abram, "Get out of your country, from your family and from your father's house to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. And you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed." यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा. जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसें उन्हें मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे. So Father, we thank you for your word. पिता हम आपके वचन के लिए We धन्यवाद देते thank हैं. you for your spirit. आपकी आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं. Thank you, Father, that we have a heart that understands कि हमारा your word. एक ऐसा दिल है प्रभु जो आपके वचन को समझता है, And we have ears that hear to your voice. और हमारे कान आपकी आवाज सुनने के लिए खुले हैं. Thank you, Lord, that this house is anointed. धन्यवाद पिता कि ये घर अभिषिक्त है. Thank you, Father, that the word comes out with accuracy धन्यवाद पिता कि वचन सटीकता से निकलता है and it is going to bring 100-fold harvest. और वो 100 गुना फल लाएगा. In Jesus' name. यीशु के नाम. Amen. आमेन. You all can be seated, आप please. सब बैठ सकते हैं. So, the Bible calls Abraham the father of our faith. और बाइबल अब्राहम को विश्वास का पिता कहती है. Now, as in faith, Jesus is the author of our faith. So then why does Bible call Abraham as the father of our faith? अब यीशु हमारे विश्वास का रचने वाला है, उसका गढ़ने वाला है, तो फिर बाइबल अब्राहम को विश्वास का पिता क्यों कह रही है? Because Abraham is an example how a man can partner with God and can be a blessing for nations. क्योंकि अब्राहम एक उदाहरण है कैसे एक मनुष्य परमेश्वर के साथ मिलकर काम कर सकता है और देशों के लिए आशीष का कारण बन सकता है. Abraham is a man who teaches us how faith operates. अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति है जो हमें ये सिखाता है कि विश्वास काम कैसे करता है. And if you can learn how Abraham inherited the promise,
और अगर आप ये सीख गए कि अब्राहम ने कैसे परमेश्वर के वायदों को अपने वश में किया, there is nothing that you cannot receive from God. तो ऐसा कुछ भी नहीं जो आप परमेश्वर से ग्रहण नहीं कर सकते. Amen. All right. So Abraham is 75 years old when God appears to him, talks to him, and promises this to him. और अब्राहम लगभग 75 वर्ष का है जिस समय परमेश्वर से बात करते हैं, उसको वायदे देते हैं. Okay. And now I want you to focus here that before God could bless Abraham, God had to give him a prophetical instruction. और मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर को अब्राहम को आशीष देनी थी, उससे पहले उसको एक आदेश देना पड़ा, एक काम करने के लिए देना पड़ा. God said, I will bless you, I will make you a father of nations, but before that, you have to come out of your father's house. और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और देशों का पिता बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुझे अपने पिता के घर से बाहर आना पड़ेगा. To a land that I will show you. एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां जो मैं तुझे दिखाऊंगा. See, that's what happens when many times young people hear grace message and they begin to react. और ये होता है जब कई बार जवान लोग अनुग्रह का संदेश सुनते हैं और वो लोग उस व्यवहार, उस संदेश को बिना समझे प्रतिक्रिया करने लगते So हैं. I was seeing some young people on Instagram, they say, oh man, our obedience means nothing now. Really? और कुछ जवान लोग इंस्टाग्राम पे कह रहे थे कि अब हमारा जो आज्ञाकारिता है उसका कोई मतलब ही नहीं बचा. Yes, for salvation, our obedience means nothing. बिल्कुल सही. उद्धार पाने के लिए हमारी आज्ञाकारिता का कोई मूल नहीं है, कोई Because काम नहीं. salvation is by grace. क्योंकि उद्धार अनुग्रह के द्वारा मिला है. But for you to be a blessing to nations, लेकिन आप देशों के लिए आशीष for बने, you to fulfill your call, आप अपने जीवन की बुलाहट को पूरा and for करें, you to be a mature son, और आप एक सयाने बेटे बने, obedience matters. उसके लिए आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है. Amen? You cannot mature if you walk in disobedience. आप तब तक सयाने नहीं हो सकते जब तक अनाज्ञाकारी होकर Oh, चलते let me हैं. say it again. मैं दोबारा कहता हूं, People, obedience has become a word of bad reputation in Grace Camp. जो अनुग्रह की शिक्षा का जो सम्मति रखने वाले लोग हैं, उनकी नजरों में आज्ञाकारिता एक बहुत ही प्रदूषित शब्द, एक बहुत ही बुरा शब्द हो चुका है. Obedience, आज्ञाकारिता, they think obedience, they relate everything to the law. No, obedience is beautiful. और आज्ञाकारिता का जो लेना देना है वो सारा का सारा उसको व्यवस्था से जोड़ देते हैं, लेकिन आज्ञाकारिता खूबसूरत है. In Ephesians 5, Paul says, wives, be tenderly devoted to your husband as churches to Christ. When you love him, it's your delight to obey him. और पौलुस कलीसिया से कहते हैं, अपनी पत्री में के पत्नियों अपने पतियों के अधीन नम्रता से बने रहो जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आज्ञा मानना आपको खुशी देता है. Amen. It's not a burden, church. It's a delight. Jesus said, my food is to fulfill the will of my Father. ये बोझ नहीं, लेकिन ये आनंद का कारण हो जाएगा, आनंद का सोता हो जाएगा हमारे अंदर. यीशु कहते हैं, मेरे लिए तो खाना है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं. Amen. Jesus said, I do nothing except I see my Father doing it. And Jesus walked miles upon miles to that one woman, to that Samaritan woman, because the Father sent him there. Never you will see Jesus cribbing to what he was instructed. और यीशु कहते हैं, जो पिता को मैं करते हुए देखता हूँ वही मैं करता हूँ. और वो मीलों चलते हुए गया एक सामरी स्त्री के पास, बीच में रास्ते में कुड़कुड़ाया नहीं, ना उसने कोई शिकायत लगाई इस बात के लिए. Amen, church. Are you getting what I'm saying? Don't react to the grace message. अनुग्रह का जो संदेश है उसको सुन के प्रतिक्रिया ना करें. Understand, grace is given so that we can walk in maturity. Come on. ये जाने के अनुग्रह दिया इसलिए गया है ताकि आप सयाने बेटों की तरह चल सकें. I told you in this series again and again, I'll say it again, without training there is no maturity, and training is not pleasing. और मैंने पहले भी कहा है, दोबारा कहता हूं कि बिना प्रशिक्षण पाए सयाना होना संभव ही नहीं, और जब प्रशिक्षण मिलता हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. God had to bring Abraham out of his comfort zone. और परमेश्वर को अब्राहम को उसके जो
जिस जगह पर वो खुश था उस जगह से निकालना पड़ा and bring him to a place where only he could hear his voice. और उस जगह से निकाल कर जहां वो इत्मीनान से बैठा था एक ऐसी जगह लाना जरूरी था कि वो परमेश्वर की आवाज को सुन सके. We hate to come out of our comfort zone. Is that true or not? हमें नफरत है अपनी अच्छी भली जगह छोड़ करके बाहर आना. That's why, different gyms, they pray that they will get people who come and pay yearly membership and then never come back. इसीलिए अलग अलग जो जिम होते हैं वो ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसे भले लोग आ जाएं जो साल भर की फीस हमें दे दें और फिर कभी शक्ल ना दिखाएं. And now it's New Year, January. That's the golden time for them because so many people would be giving them so much money and then never go to gym again. Why? Because we hate to come out of our comfort zone. और अब नया साल आने वाला है तो बहुत से लोग भागते हुए जाएंगे. उनके लिए सुनहरा अवसर है जाके जब वो जिम में पूरे साल की फीस देंगे और उसके बाद दोबारा कभी नहीं जाएंगे क्योंकि हमें नफरत है अपनी आरामदेह जगह से बाहर आने के लिए. Why should I get early and pray? Why should I give? Why should I go and do the work if anybody else can? Why should I go and visit somebody's house and pray for the sick? It pinches our flesh. क्यों मैं जल्दी उठूं और प्रार्थना करूं? क्यों मैं किसी के पास जाऊं प्रार्थना करने के लिए? क्यों मैं राज्य में कुछ दूं? जब किसी के लिए जाना होता है तो हमारे शरीर को बहुत दिक्कत होती है. Amen. And as I told you, only those will mature in the kingdom, those who will enroll for the training. और जैसा मैंने बताया केवल वही लोग सयाने होने की रास्ते पे जाएंगे जो लोग प्रशिक्षण के लिए नाम देंगे, भर्ती होंगे. So think about, there is a guy, a very carefree guy, done college in Delhi, is roaming around, but then he enrolls for Indian Army, gets selected, and now he's there and has to get up early in the morning, has to, there is an order to everything, and there are protocols in the army, and he has to walk by the ranks, get up, go through the training, and it's not pleasing. और अब कल्पना कीजिए एक व्यक्ति हैं जो एक महाशय जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर वो सेना के लिए नाम दे देते हैं, सेना में भर्ती हो जाते हैं और अब उनको समय से उठना है, सुबह उठ के प्रशिक्षण लेना है, सारी बातों में हर एक बात में उनको नियम कानून दिखाए जाते हैं, नियम कानूनों का पालन करना जरूरी है, अपने से बड़ों का आदर करना जरूरी है और ये सब करना बिल्कुल आसान नहीं होता. Let me ask you a question. How many people you have seen videos on Instagram where somebody is painting amazing and you're like, wow, I want to paint like this? Anybody? कितने लोगों ने इंस्टाग्राम पे वो वीडियोस देखे जहाँ पे कोई पेंटिंग कर रहा है और आप कहते हैं मैं ऐसा पेंट करना चाहता हूँ. Or you saw somebody playing a guitar and you're like, I want to play guitar like this. और आपने गिटार देखा किसी को बजाते आपने कहा मुझे ऐसे बजाना है. Or somebody is playing amazing piano, you're like, I want to do it like that. और कोई बहुत ही बढ़िया कीबोर्ड बजा रहा है आपने कहा ऐसे ही बजाना है मुझे बस. Right? है ना? It's like awesome. बहुत अच्छा है. So many would have even bought instruments. और कितने लोगों ने I have done that. कितने लोगों ने खरीद भी लिए होंगे इंस्ट्रूमेंट. मैंने भी खरीदे. But what we don't see, the hours upon hours they practice when people sleep in their cozy bed. लेकिन जो उस वीडियो में नहीं दिखता वो है वो घंटे घंटे जो वो लोग लगाते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ प्रैक्टिस करने में जब हम लोग आराम से सो रहे होते हैं. Church, there is no greatness without training. कलीसिया महानता संभव नहीं है बिना प्रशिक्षण के लिए. And maturity starts when you say yes to God's training. और सयाना होना तब शुरू होता है जब आप परमेश्वर के प्रशिक्षण को हाँ बोलते हैं. When you are ready to become uncomfortable so that God can mold you into a mature son. जब आप तैयार होते हैं उस आरामदेह जगह से बाहर आने के लिए कि परमेश्वर आपको परिपक्व बेटे के रूप में बना सके. See, God has never and will never bypass anybody's free will. God will never do that. Abraham had the free will to reject what God had told him to do. ना परमेश्वर ने कभी ऐसा किया और ना ही कभी करेगा कि वो किसी की इच्छा के विरोध में जाकर के उसके साथ कुछ करे. अब्राहम के पास पूरा चुनाव था कि वो परमेश्वर को मना कर दे उसकी योजनाओं के लिए. Just think about that. I don't know. Maybe God would have spoken to more. We'll know it in eternity. और हमें नहीं पता कि परमेश्वर ने और किससे बात की होगी अब्राहम से पहले, शायद अनंत में जाके मालूम होगा. Amen. So before God can make him a blessing for others, और इससे पहले कि परमेश्वर उसको किसी और के लिए आशीष बना पाए, before you can be a blessing for others, इससे पहले कि आप किसी और के लिए आशीष बन पाए, there are prophetical instructions that will come in your life. भविष्यवाणी के निर्देश आपके जीवन में आएंगे. Amen. And when you delight in those, you just
follow what God says, He will bring you to a place where not only you are blessed, but you're also a source of blessing for others. और जब आप उनमें आनंदित होंगे तो परमेश्वर आपको एक ऐसी जगह पर ले आएगा जहां पर आप सच में आशीषित होंगे और केवल खुद ही नहीं लेकिन औरों के लिए आशीष का कारण होंगे. Just think about that. God says something that, when I read it, I was like, what? In you, all the families of the earth shall be blessed. इसके बारे में सोचे जब मैं पढ़ता हूं तो हैरान हूं कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तुझ में पृथ्वी के सारे परिवार आशीषित होंगे. God, I mean, like, if you want to bless all the families, just bless all the families. प्रभु अगर सारी पृथ्वी के परिवारों को आशीषित करना तो ऐसे ही कर दो. That's what today's many young people, again, we sometimes react to the messages and don't understand. When God wants to bless you, He will send a man in your life. और यही दोबारा बहुत सारे जवान लोग जो नहीं समझते इस बात को आज कि अगर परमेश्वर को आपको आशीष देनी है तो वो किसी मनुष्य को आपके जीवन में भेजेगा. Did you hear what I just said? आपने सुना जो मैंने कहा? And that's what we reject. Oh, me and Jesus. Yes, we and Jesus. But just think about it. God has not planned it like that. We all are connected together. And God wants you to become a source of blessing for many others. Yes, He is the source. From there it comes to you. But from you, He wants to bless so many other people. और जो लोग परमेश्वर हमारे जीवन में भेजता है उनको हम ठुकरा देते हैं ये कहते हुए कि सिर्फ मेरे और परमेश्वर के बीच की बात है. हाँ, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है और आपके द्वारा बहुतों को आशीष देना चाहता है लेकिन उसके लिए वो एक मनुष्य को भेजेगा. Whenever God wants to do anything on the earth, He has always chosen a man. जब कभी परमेश्वर ने कुछ भी पृथ्वी पे करना चाहा उसने हमेशा एक मनुष्य को चुना है. Think about that. What happens? What testimonies do we hear? Somebody praying, a widow praying, I never had food. And then God speaks to somebody. They go to their house. They provide. How did God fulfill the prayer? Through somebody. और कल्पना कीजिए कितनी सारी प्रार्थनाओं के उत्तर हम ऐसे लोगों से सुनते हैं कि उनको ऐसे मिला कि वो प्रार्थना कर रहे थे कि उनके पास खाना नहीं था और कोई गया जिसने उनको जाके खाना दे दिया. Whenever God wants to train you, He will bring people around you who will teach you. But many times we reject instructions because we don't want to submit. जब कभी परमेश्वर आपको प्रशिक्षित करना चाहता है तो वो लोग लेकर के आएगा आपके जीवन के लिए लेकिन हम लोग उन निर्देशों को ठुकरा देते हैं क्योंकि हमें प्रशिक्षण पसंद नहीं आता. Amen. Anyway, that was not my message, but I'm just sharing so that you understand. ये मेरा संदेश नहीं था लेकिन मैं इसलिए बता रहा था कि आप समझ पाए. There will come prophetical instructions in your life. परमेश्वर की ओर से निर्देश आएंगे आपको जो पूरे करने चाहिए. Amen. So rather than saying, oh, my obedience doesn't matter, whatever I do, God is my Father. तो ये सोचने की जगह कि अरे मेरी आज्ञाकारिता से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो कुछ भी करूं जिंदगी में परमेश्वर तो मेरा पिता ही है. That's the sound of a babe in Christ. ये आवाज है एक छोटे बच्चे की जो प्रभु में पैदा हुआ And है. Jesus और जब यीशु shows us how mature sons respond. हमें दिखाता है कि सयाने बेटे कैसे जीते हैं. He said, I love to fulfill my Father. वो कहता है Father's will. मुझे प्रेम है अपने पिता की इच्छा को पूरा करने In से. fact, it is my bread. यहाँ तक कि वो मेरे लिए रोटी है. Amen? Guys. Okay. So, Abraham is 75 and God talks to him and tells him that I'm going to bless you. You'll be a father of many nations. और अब्राहम 75 वर्ष का है और परमेश्वर से कहते हैं मैं तुझे आशीष दूंगा तू बहुत देशों का पिता बनेगा. And see, many times when we read about these heroes in the Bible, we put them on a pedestal. कई बार जब हम बाइबल में इन महान लोगों की कहानियां पढ़ते हैं तो हम उनको इतना ऊंचा स्थान दे देते हैं अपनी कल्पना में. They were exactly like us. वो हूबहू हमारी तरह थे. Amen? Exactly like us. वो लोग बिल्कुल हमारी तरह थे. It was not like God spoke to Abraham and Abraham believed, bam, no. ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने अब्राहम से बात की और अब्राहम ने उसी समय पूरी तरह विश्वास कर लिया. Abraham, I don't know, he and Sarah laughs. और मुझे नहीं पता अब्राहम से परमेश्वर बात कर रहे हो अंदर सारा हंस रही है कमरे में. It's like, and anyway, so, and then Abraham could not believe for some years. और कई सालों तक अब्राहम भी विश्वास नहीं कर पाया. So God knows, if I have to make Abraham the father of many nations, I have to change his identity.
सो परमेश्वर को पहले तो ये पता है कि अगर मुझे अब्राहम को देशों का पिता बनाना है तो पहली तो उसकी पहचान बदलनी पड़ेगी मुझे. So God changes his name from Abraham to Abraham. तो परमेश्वर उसका नाम अब्रम से अब्राहम करते हैं. So imagine, Abraham means the father of many nations. और कल्पना कीजिए अब्राहम का मतलब है देशों का पिता. So if he is greeting, hi, I am Abraham. तो अगर वो किसी से मिल रहा है कि और कहता है कि मेरा नाम अब्राहम है, He's saying, hi, I am a father of many nations. तो वो ये कह रहा है कि नमस्ते, मैं कई देशों का पिता हूँ. Every time he would say Abraham, he is declaring that he's a father of many nations. जब कभी वो ये कह रहा है कि मैं अब्राहम हूँ तो वो ये घोषित कर रहा है कि मैं कई देशों का पिता हूँ. Okay, still, फिर भी- Abraham doesn't get it. फिर भी अब्राहम को समझ में नहीं आता. So God has to do something. तो परमेश्वर को कुछ करना पड़ा. God has to give him a picture to what it looks like. तो परमेश्वर को उसको एक तस्वीर देनी पड़ी कि ये दिखाई कैसा देता है. And now hear carefully what I'm about to और tell ध्यान you. से सुनना जो मैं बताने वाला हूँ. Whatever you are believing for, standing for in faith, जिस किसी बात पर आप विश्वास कर रहे हैं, जिस किसी बात के लिए आप खड़े हैं विश्वास में, connect a picture to it and you will have your answer. उस बात के लिए जिस पे आप विश्वास कर रहे हैं उससे एक तस्वीर जोड़ ले और आपको आपका जवाब मिल Did you जाएगा. hear what I just said? आपने सुना जो मैंने कहा. Whatever you are believing for, connect a picture to your answer and you will have your answer. जिस किसी बात के लिए आप विश्वास कर रहे हैं एक तस्वीर उसमें जोड़ लीजिए और अपना जवाब आपको मिल जाएगा. That's why I told Hina to make this so that you understand. See, Abraham is in desert. इसीलिए मैंने आप हिना से कहा कि तस्वीर बना ताकि आप जान पाए अब्राहम रेगिस्तान में है. And in the desert you only see two things. और रेगिस्तान में दो ही चीजें नजर आती You हैं. see sand आपको रेत दिखाई देता है in the morning सुबह, and you see stars in the night. और रात को आपको तारे दिखते हैं. And God calls Abraham out of his tent. और परमेश्वर अब्राहम को उसके तंबू से बाहर बुलाते Come हैं. out. बाहर आ जा. Look at these stars. ये सितारों को देख. So shall your children be. ऐसे ही तेरे बच्चे भी होंगे. Look at the sand. रेत को देख. So shall your children be. ऐसे ही तेरे बच्चे भी होंगे. Ah, now. And Bible says, and Abraham believed. और अब अब्राहम के लिए आसान था विश्वास करना. और बाइबल कहती है और तब अब्राहम ने परमेश्वर की बात का विश्वास किया. After so many years, इतने सालों के बाद when God gives him a picture, जब परमेश्वर उसको एक तस्वीर the देते हैं, first time Bible says, Abraham believed. तो पहली बार बाइबल कहती है कि अब्राहम ने विश्वास कर लिया. Amen. आमेन. See, that's why so many people don't know how prayer works. They think it's like magic. Oh, I have done it, abracadabra, done, it will be done. No. Your intentionality, your continual partnership is required for you to get an answer from और God. ऐसे ही बहुत लोग समझते हैं कि प्रार्थना जादू की तरह अब्राकडाबरा मैंने बोल दिया तो अब हो जाएगा मेरे लिए. लेकिन नहीं, आपको जानबूझ के अपना ध्यान उस बात पर लगाना पड़ेगा जो बात आप मांग रहे हो. Amen. You have to continuously see it in the morning. You have to see it in the night. Come on. You have to see it in the morning. You have to see it in the night till it goes in your heart, and out of the abundance of your heart, it starts coming out from your mouth. लेकिन आपको उस तस्वीर को जिसके लिए आप मांग रहे हैं परमेश्वर से, उस तस्वीर को आपको अपने सामने रखना पड़ेगा. चाहे रात हो चाहे दिन हो, वो तस्वीर आपके सामने होनी चाहिए रात और दिन. और तब वो आपके दिल में प्रवेश कर जाएगी और आपके मुंह से निकलने लगेगी.